अगर राजकुमार जा रहा है ना तो इतना हाइपर मत होना। एक बार सुनो 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 सुनो, एक हफ्ता डस्टिंग नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यूएस से आ रही हूँ, लोग इतने पागल नहीं है जितने हम लोग हैं। हम लोग थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी है क्लीनलीनेस के ऊपर, ठीक है। अगर डस्ट है तो ठीक है, हाँ ठीक है, हम कर सोचो कि आप आउटडोर में बैठे हो। जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, घर के अंदर आया इतना स्मार्ट सा लड़का, छोटा सा लड़का। हाँ तो ठीक है ना मम्मा, आपको समझ नहीं पड़ रहा, वो लोग जानबूझ के आपसे पे स्केल बढ़ा रहे हैं सो दैट आपकी पे स्केल बढ़े। नथिंग अगेंस्ट मोदी जी, ओके। मोदी जी इज अ सीनियर पर्सन, he is a senior citizen as well as the prime minister of my country for the third time. I respect his efforts and I respect his journey. मगर क्या होता है जब आप इतने बड़े पोस्ट पे होते हो, आपके नीचे जो हो रहा होता है शायद आप सब चीज़ों के रख सकते, निगरानी नहीं रख सकते। तो उससे क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट बदलाव आना ज़रूरी है। You may have done the best for the country, you may have done the best for the Hindus of this country, because ऐसा नहीं है कि this is a Hindu country, but it is basically a Sanatan land which has obviously got converted to various other religions because of the internal politics since centuries. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि there has to be a younger option, an option that is, you know, competent enough among all the choices available after Modi ji, and we have to give chance to those people whose family has probably not made correct decisions in the past, because parents के wrong decisions के लिए आप बच्चों को कब तक punish कर सकते हो? If the child is a good child, then he or she deserves an opportunity. तो ऐसा नहीं है कि मुझे कांग्रेस से कोई टिकट मिल रही है या you know I'm pissed off with BJP. BJP IT cell to supports my husband like blindly, and the whole thing is उसी की ट्रोल फैक्ट्री मेरे को अटैक करती है। It is just like trying to, you know, demoralize me while uplifting my husband. So ये जो dirt हो रहा है इस देश के अंदर through a IT cell, that is really really wrong. I cannot blame it that it's them only, but then social media was introduced to us from 2014. Before that there was not a lot of social media in India. मुझे पता है Facebook भी नहीं होता था. So I'm glad that we are in the times of electronic IT age, AI and everything, but human mind is human mind, and the human mind works on emotions. Human mind does not work only on algorithms. So looking at that, no offense to anybody, but I can change my opinion. तो दूसरी बात है कि ट्रोल फैक्ट्री बाप रे बाप इतना गंद फैला रही है मेरे लिए, but then that's the way it is. I have to deal with it, है ना? बिकॉज अगर मैं जावा बोलती हूँ तो वो बोलेंगे कि मैं अपने हस्बैंड से जेलस हूँ, और मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करती हूँ तो मेरे खिलाफ वो लोग ही फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हैं। सो आई हैव टू डू व्हाट आई हैव टू डू। या ओके, बाय, हैव फन। dtdc.in, else press 2 to continue on this call. वेबसाइट पे कोई Our menu options have been updated recently. Please listen carefully before proceeding. Press 1 for domestic shipments. Press 2 for international shipments. Press 1 to track shipment. Press 2 to check serviceable PIN codes. Press 3 for My DTDC app queries. Press 4 for pickup queries. Press 5 for while we transfer your call to the agent. This call may be recorded for training and quality purposes. All our customers. For calling, this is my name is Vikram. I'm a student. Yeah, listen, I want to send a courier, domestic courier to Bombay, one by surface and one by air from Ahmedabad. Okay, I need to know your agents, DTDC agents, because Google से जो information आ रही है उसमें they are quoting weird price. They are not quoting a standard price. जी, आपको समझ पड़ा मैंने क्या बोला? जी 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 जी, आपको जो वेबसाइट में चार्जेस पड़ रहे हैं, मतलब आप चेक करके देख रहे हैं और दूसरी जगह में डिफरेंट चार्जेस दिखा रहा है। नहीं, जो एजेंट्स को मैं फोन कर रही हूँ जो गूगल पे आ रहे हैं वो एजेंट्स अलग अलग चार्जेस बोल रहे हैं।
तो उनका पर्सनल जी, जी। कमीशन क्या है, पिकअप का क्या है, कुछ क्लैरिटी नहीं है। और आपकी वेबसाइट के ऊपर भी मुझे शिपमेंट बुक करने के लिए कोई इजी तरीका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मैं सैटेलाइट अहमदाबाद में हूँ, मेरी शिपमेंट पिकअप करानी है, मेरे को किधर जाना है, मुझे आप प्रॉपर एजेंट का एड्रेस दे दो या पिकअप के लिए नंबर दे दो। जी, डिटेल्स में इंटरेस्ट दिखाने के लिए धन्यवाद मैम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम पायल है सर। कस्टमर का नाम कुछ रेलेवेंस नहीं रखता। कस्टमर ने आपको फोन किया है, आपको एड्रेस दे रहे हैं सैटेलाइट अहमदाबाद, आप मुझे आजू बाजू के डीटीडीसी के एजेंट्स बताइए। इसके लिए मैम देखिए, आप क्या बिजनेस करते हैं शिपमेंट में जान सकता हूँ? सर शिपमेंट में जो चीज जानी होगी वो ही जाएगी ना, कपड़े होंगे या डॉक्यूमेंट होंगे। आप मुझे एजेंट बताइए ना कि आपका कौन सा आउटलेट है, फ्रेंचाइज कहाँ कहाँ है सैटेलाइट। शिपमेंट वही होगा जो शिपमेंट जा सकता है ना, मुझे आप लोकल फ्रेंचाइज बताइए ना, एजेंट्स जो सैटेलाइट अहमदाबाद में है। मैम आप पहले बता रहे थे आप गोल्ड भेजना चाहते हैं, अभी बता रहे हैं आप कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए कंफर्म करके बताएं मैम शिपमेंट में क्या भेजना चाहते हैं। सर मैं शिपमेंट में डॉक्यूमेंट्स भी भेजूंगी, कपड़े भी भेजूंगी, जूते भी भेजूंगी, खाना भी भेजूंगी। मेरे को डिपेंड करता है कि मैं क्या पार्सल कहाँ पे भेजूं। कि एजेंट है, डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग एजेंट है, कपड़ों के लिए अलग एजेंट है, जूतों के लिए अलग एजेंट है। क्या आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं मैम, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन दूसरी बात है सर, वो मैं एजेंट से, फ्रेंचाइज ओनर से बात कर लूंगी। आप मुझे जेन्युइन फ्रेंचाइज ओनर बताइए ना, टर्म्स एंड कंडीशंस दूसरी बात है। नहीं मैम, तो इसके लिए आप मार्केटिंग अच्छे से अपनी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैम। शिपमेंट वैल्यू कितना है सर? शिपमेंट वैल्यू पे आप डिसाइड करेंगे सरफेस रेट और एयर रेट। अगर आप 50,000 से ज्यादा अमाउंट है तो उसके लिए आपका पिन कोड नंबर को कृपया मुझे बताइए, उसके रेस्पेक्टिव मैं आपको ब्रांच की एड्रेस बता दूंगा, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेंगे मैम, ठीक है, माफी दे दो सिक्योरिटी रीजन के वजह से। हाँ समझ गई। मेरा शिपमेंट 50,000 के ऊपर तो है नहीं, बट तो भी मेरा पिन कोड है 380015। थोड़ा समय दीजिए। Dealing with stupid people and stupid IVR Follow call करेंगे। centers। हाँ बोलिए। हाँ जी, इसको नजदीक की जो आपका ब्रांच डिलीवरी पॉइंट पड़ रहा है फ्रेंचाइजी, ये आपका नंबर 2 कृष्णा टावर नियर सचिन टावर 100 फीट रोड आनंद नगर अहमदाबाद ही दिखा रहा है मैम। तो वहां पे जो रेट कार्ड होगा वो रेट कार्ड आपकी कंपनी का रेट कार्ड होगा? मैम वो भी जो चार्जेस वगैरह रहती है वो आपका डायमेंशन, मतलब आपका पार्सल का वजन वगैरह कितना है उसके हिसाब से चार्ज रेट सेट होती है मैम। वो मुझे पता है सर, मैं पहली बार कुरियर नहीं कर रही हूँ, मगर जो लोकल फ्रेंचाइज ओनर है वो एक्स्ट्रा पैसे लगाते हैं। आपका कोई रेट कार्ड नहीं है? जैसे स्टारबक्स की कॉफी है, उसका प्राइस दिल्ली में, मुंबई में, कैलकाटा में सब जगह सेम होता है। आपका एक प्रॉपर रेट कार्ड होना चाहिए। स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं आप, तो जब आप स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं तो कोल्ड कॉफी का सेम रेट होता है, चाहे वो अहमदाबाद का एयरपोर्ट हो, मुंबई का एयरपोर्ट हो या दिल्ली का एयरपोर्ट हो, ठीक है। आपका कोई रेट कार्ड वैसे है क्या कि नहीं है? उसके लिए जो रेट ऑफ शीट जो रहती है वो आपको फ्रेंचाइजी में जाकर भी आपको पता चल जाएंगे मैम। हाँ, तो जब हम प्रीमाइसेस में जाएंगे तो हमको रेट कार्ड दिखेगा, ऐसे हमको रेट कार्ड आप नहीं बता सकते। नहीं, हमारे सिस्टम में शो नहीं होती मैम चार्जेस। अगर शो तो ये फीडबैक लीजिए कि आपको आपका एक ऑनलाइन रेट कार्ड होना चाहिए जो आपके कस्टमर्स को दिखना चाहिए, क्योंकि हम ऑनलाइन जब खाना ऑर्डर करते हैं ना, सुनिए पहले, भगवान ने आपको 2 कान दिए। ऑनलाइन जब हम खाना ऑर्डर करते हैं ना तो पाव भाजी का रेट आता है कि पाव भाजी का रेट क्या है, ठीक है। वैसे आपका एक बेंचमार्क ऑनलाइन रेट कार्ड होना चाहिए जो आपकी वेबसाइट पे फ्लैश होना चाहिए। I called up the rickshaw wala because it's easier. He lives here only, and me and mom will go and get the courier because बात 100-200 की नहीं है। बात ये है कि लोगों को इतना बेवकूफ बनाया जाता है just because they don't want to understand the job. You understand? US में तो सब खुद ही करते हैं ना, इंडिया में ही सबके इतने नखरे हैं। तो इतने नखरे हैं जिसकी वजह से करप्शन है। The rich are richer and the poor, because
of their karma are not able to go up the ladder, and then they are doing wrong things. You understand? यहाँ पे ऐसा नहीं है कि I want to be biased towards the rich, but you have to understand your job. अगर आप आत्मनिर्भर बोल रहे हैं भारत को होने के लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन पे क्या रेट है, एक्चुअल दुकान में क्या रेट है, वाई देयर इज डिस्क्रिपेंसी. पैसा देने से दिक्कत नहीं है, बट सही तरीके से पैसा मांगो ना हमसे. गलत तरीके से हिडन कॉस्ट के थ्रू पैसा मत मांगो, बिकॉज इंडिया के अंदर क्लैरिटी नहीं है ना. You should wear mask when you are traveling in the rickshaw so that you don't get tanned because of sunlight. Oh yeah. It is for preservation of your skin. If you use rickshaws in emergency, please cover your Not face. emergency. Daily basis. Daily basis? Yeah, I'm in that level now. My level is that now. See, Veena, be happy. I'm happy. That you are able to figure out your own thing yourself. US में सब लोग अपने आप ही करते हैं, ठीक है ना. एंड मेट्रो से जाते हैं, सब जगह से जाते हैं. इंडिया में ज़्यादा ही खेखड़ है. सेंडर में पायल रोहतगी, PAYAL ROHATGI TGI. ये आपका डॉक्यूमेंट्स गया. देखो माँ, आपको ऐसी मशीन रखनी चाहिए. ऐसा ये भी लगता अबे अभी तो लगेगा, मार्किंग करना है ना, उसके लिए खुला छोड़ दिया. टेप के बाद होता नहीं है ना, टेप लगने के बाद मार्किंग नहीं होगा. अभी तो करना है पूरा पैकिंग. है. इसके ऊपर फिक्सेस कैसे आए? You need a bigger one, you know? नहीं हो जाएगा, वेट. नहीं ये घर के लिए बोल दिया ना. अच्छा, ये कागज भी अंदर इसके रखना साथ, था. हाँ चलेगा. इसके साथ आप चिपका दो. चलेगा. हाँ दूसरी साइड वो चिपका देता. हाँ, वो चिपका दो. बस कागज तो कागज है ना, फोटो ले ली उसकी. हेल्थ इंश्योरेंस वाले है. हाँ. पहले इसका फोटो भेज दीजिए, मैं फिर इसका मार्किंग करके दे देता हूँ. देंगे, बात खत्म. खत्म आपको पसंद आए तो करवाने का है ऐसा ना. हाँ, जबरदस्ती थोड़ा है, हाँ. लड़ाई थोड़ा करनी है 10 रुपए के लिए. अभी तो बोला आपका वेट 5 kg है, 5 kg में बक्सा जाएगा. आपका बैग भी डाल दिया मैंने पूरा अंदर. हाँ, बिकॉज वो बैग भी चाहिए. हाँ अभी तो ऐसा कुछ होता है कि आप गोल्ड मेंबर हो तो आपको कोई कंसेशन मिलता है? वो अलग अलग रेट होता है, लेकिन उनमें मैडम कंपनी धंधा बहुत 5 लाख का धंधा दे दो तो इतना रेट करेंगे. अच्छा, ऐसा. कंपलसरी धंधे का कोई ठिकाना थोड़ी है. हाँ आज लाख भी आ गया ना, कल 5000 भी आ गया हाँ कंपलसरी. लेकिन वो लोग तो फिर इतना चार्ज लगाएंगे. हाँ. जितना हमने प्रॉमिस किया है हाँ. उसमें रेट 10-20 रुपया कम होता है. ये तो बहुत पुराना है. हाँ, ये तो पुराना है ना. इनके वेबसाइट के ऊपर भी पता नहीं चलता. मैडम सब वेबसाइट पे मैंने सोचा मैं करूँ, मगर मैं बुक ही नहीं कर पा रही थी. ऑनलाइन इसलिए में. लेकिन आप डालोगे कहाँ पर, ड्रॉप कहाँ करोगे? कोई लेगा नहीं. तो वही ना, पिकअप आ ही नहीं रहा था वेबसाइट के ऊपर. पिकअप भी नहीं आएगा और ड्रॉप करने आप कहीं तो जाना पड़ेगा. हाँ. हमारे क्या है, मैंने ये बुक किया ना, ऑनलाइन बुकिंग वहाँ दिखेगा तो ही वो लोग रिसीव करेंगे, नहीं तो नहीं करते. अब ऑनलाइन बुकिंग आपसे होगा नहीं. हो रहा ही नहीं था. मैं ट्राई कर रही थी, वेबसाइट मैंने ट्राई करी, इससे तो मैं आई निकली, खुद ही निकली. आप यहाँ ड्रॉप करने आओगे तो मैं मना करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग होगा नहीं और कंपनी मेरे से एक्सेप्ट नहीं करेगी. मैं भी लेके क्या करूँगा. कंपनी वाले भी पागल, नए नए साहब आते हैं हर 6-12 महीने में और नई सिस्टम लाते हैं, लेकिन परेशान हम हो जाते हैं. हाँ, आप लोगों को अगर मेन बिजनेस यही है हाँ. तो परेशान तो आप होंगे. लेकिन आप ड्रॉप करोगे, लेकिन बुकिंग कौन करेगा?
ऑनलाइन कंपलसरी बुक होना चाहिए। आपका सिस्टम ये पूरा पार्सल का फोटो अंदर आएगा, ऐसा बुक होना चाहिए। लेकिन आपने ऑनलाइन करवाया है तो उसका कोई डिटेल नहीं मिलेगा मेरे से। नहीं, मैंने इसलिए नहीं करवाया ना, इसलिए मैं आपकी दुकान पे ही आई, गूगल में डाला और वो लोग अपनी मर्जी से आपको बोला है कि आएंगे बुक पिकअप करने, आज आधी रात को शाम को 8 बजे कल आएंगे, तो क्या करने का। हाँ, तो और मतलब नहीं रहना, तो कितनी देर बैठे रहने का पार्सल के साथ, वही परेशानी है। तो आपका घर बाजू में स्टाफ है नहीं, परेशान करते हैं हमको भी साथ में। नहीं, स्टाफ का तो हर जगह इशू है। स्टाफ को काम कम करना है, ड्रामा ज्यादा करना है। कुरियर की नहीं है बात, है इंफॉर्मेशन सही होने की। ठीक है, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कितना रेट है बाय सरफेस, कितना रेट है पैकेज, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। ये गाड़ी चक्की आएगी यहाँ साइड पे रखना। अब वो जो वहाँ पे ट्रैक आउट कुरियर है बॉम्बे में, वहाँ पे प्रॉपर रेट्स लिखे हुए हैं, वो सबसे सस्ता है 70 रुपीज़ पर केजी सरफेस का। यहाँ पे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं 100 रुपीज़ पर केजी सरफेस का। हाँ, तो जब 70 रुपीज़ है तो 70 और 30 में 64 ये देना उसको, बंद कर गाड़ी बंद कर। इसके पास ये पर्ची दे दे, 4 रुपीज देना। और व्हाइट थैली में है, क्या है। गेहूँ है ना, आटा दे देगा। तो मम्मा आपको समझना चाहिए, बात 20-30 रुपए की नहीं है। आप लोग इन्फॉर्मेशन ही नहीं लेना चाहते, ये सोच के कि ये बहुत छोटा मैटर है। अब जब से मैंने वो बिजनेस किया छोटे लेवल पे, तो मैं समझ गई ना गई बेटा। कि छोटे लेवल पे तो समझो कि क्या रियलिटी हाँ, है। समझ फिर गई। दान देना है तो दो दान दे दे रहे हो ना, दान ऐसे वैसे भी आप लोग कितना दान दे रहे हो, 50-50 हजार रुपए का दान तो दे रहे हो आप लोग। देने दे। हाय, मास्क लगाया करो तो टैन नहीं होगी, समझ गए। याद आया था, इतना जल्दी में निकल आया। बात 100-200 की नहीं है, बात सामने वाले की करेक्ट इंस्ट्रक्शंस लेने की है। तो बॉम्बे में मैं अभी वो आशीर्वाद और ये सब का आटा लेती हूँ ना, ब्रांड का, इस साथ ही नहीं हूँ। ज्यादा क्यों लिया? कितना लिया? 64 लिया आपने, कितना? 64। हाँ, 3 किलो 800 ग्राम का इतना ही लिया। कितना ज्यादा लिया पैसा? 3 किलो 800 ग्राम का। हाँ, नहीं मैंने वो लिया था, आटा लिया था। तो ठीक है। मकई का आटा खिला। नहीं 3 किलो 800 ग्राम। मतलब समझो नियरली 4 किलो। हम थोड़ा सा ही निकाले, समझ लीजिए। उसको मैंने बोला था कि एक साथ पैसे लेना, इसलिए। तो आप वो कैलकुलेट कर रहे होंगे ना। हाँ, चलिए घर चलिए। आपके वहाँ कैसे लेते हैं किलो का? किलो का हिसाब होता है ना, वो वाली 5 रुपये ऐसे नहीं लेते हैं। 6 रुपये। 5, लेकिन हमारे वहाँ 20 किलो होता है ना। हाँ, तो 7 रुपये या 80 रुपये तक कुछ मिलता है 20 किलो का। रेट मालूम होना चाहिए ना, पर किलो कितना है। 4 किलो 300 रुपये होता है। ये जरा ज़्यादा है, इसका 6 रुपये किलो है। हाँ, इसका ज़्यादा है। हाँ, बॉम्बे में तो वैसे 13 रुपए लेते हैं। अभी 64 और 24 लिया उसने, और जब वो चक्की में पीस के आया तो 3 किलो 800 निकला। वो बोल रही हूँ, पहली बार ट्राई किया। Here I've done many times, बस आटा रखने को ना। हाँ, वो करेगा। ऐसे अंदर 7-8 किलो 10 किलो आटा आ जाए ना। हाँ, ऐसा एक डब्बा ले लेंगे 10 किलो वाला। 10 किलो वाला डब्बा लेंगे ना तो हमने 7 किलो आटा आएगा। ऐसा? बाकी का कहाँ गया? वो डब्बे का वेट ना, डब्बे का डायमेंशन में। ऐसा नहीं, गेहूँ का? जैसे 10 किलो गेहूँ आ सकता है ना, ऐसा डब्बा लेते हैं तो आटा वो गेहूँ जब देना तो आटा से थोड़ा ऊपर ही रखने का डब्बा, तो पूरा भर जाएगा